5th August 2020, class 9, subject maths, topic circles, chapter 10, exercise 10.1. Date 5th August 2020, class 9, subject maths, topic circles, chapter 8, exercise 10.1. Date 5th August 2020, class 9, subject maths, topic circles, chapter 10, exercise 10.1. कुछ कंसेप्ट रह गए थे चैप्टर 10 के, वो आप देखोगे थोड़ी बहुत रह गए थे, बाकी कंप्लीट हो गए थे कल। तो कुछ कंसेप्ट में ये है, 9 नहीं करना है, उस सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, सेमी सेक्टर, ये आप देखोगे कि होता क्या है। सरकमफ्रेंस, कुछ ऐसे पॉइंट्स है वो आप देखो, फिर 10.1 करते हैं। सबसे पहले अगर एक सर्कल है, जैसे ये बीच में है, ये भी दो आर्क है। When P and Q are ends of a diameter, when P and Q are when P and Q are and when P and Q are ends of a diameter, ends of a diameter, when P and Q are ends of a diameter है, then both arcs are equal. Both arcs are equal and each is called a semicircle, and each is called a semicircle. आर्क को हम ऐसे लिखते हैं, अब नेक्स्ट इसमें आता है the length of the complete circle is called the length of the complete circle is called the length of the complete
The length of the complete circle is called its circumference. सर्कमफ्रेंस उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस. The region between a chord अब आता है द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड है the region between a chord and either of its arc and either of its arc and either of its arc is called a segment of the circular region. Is called a segment of the circular region, segment of the circular region, or simply a segment of the circle. और segment of the circle. Segment of the circle. There are two types of segments. यहाँ पे आप लिखोगे there are two types of segments. Segments के two types होते हैं, major segment and the minor segment. फर्स्ट वाले को कहते हैं
पॉइंट है, सेकेंड वाले को कहते हैं माइनस एक। जो छोटा सा होता है ये माइनर, और या जो बड़ा सा होता है उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट उसमें आता है द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई। The region between an arc the region between an arc and two radii. The region between an arc and the two radii joining the center to the end point. Joining the center joining the center and joining the center to the end points of the arc. Center to the ends point of the arcs is called a sector. Is called a sector. तो एक सेक्टर है, जो छोटा है उसको माइनर है, जो बड़ा है उसको मेजर। Like segment, you find that the minor arc corresponding to the minor sector and the major arc corresponding to the major sector. Like segments, the minor arc correspond to the minor sector. यहाँ पे लिखेंगे correspond to the minor sector. The major arc है correspond to the major sector. When two arcs are equal, that is each semicircle, both segments and both sectors becomes the same, known as semicircular region. जब दोनों इक्वल हो जाए तो
तो ये सेक्टर हो गया, लाइन सेगमेंट हो गए। अब 10.1 एक्सरसाइज कुछ समय में आप देखोगे, अगर ये सारे आपको अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट करना है और इसे लर्न भी करना है, तब आप 10.1 के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब 10.1 एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। 10.1 एक्सरसाइज में जो अभी अब तक आपने जो कुछ सीखा है उसी से ये रिलेटेड है। उसी से ये रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक्स। द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज इन एक्सटीरियर, और इन सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहाँ पे लाई करता है, बाहर की अंदर। तो सेंटर ऑफ द सर्कल जो होता है इंटीरियर में अंदर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है। इंटीरियर सर्कल के अंदर होता है। ए पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius, ये एक पॉइंट है। ए पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius, अगर उसके रेडियस से बड़ा है। लाइज इन है ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर में होगा कि इंटीरियर में होगा। अगर उसके रेडियस से बड़ा है तो एक्सटीरियर होगा, अगर रेडियस से छोटा है तो इंटीरियर होगा। तो इसके लिए ग्रेटर है तो एक्सटीरियर, लेस है तो इंटीरियर। तो ये एक्सटीरियर है क्योंकि ग्रेटर है पहले से ही। तो सेकंड नंबर का होगा एक्सटीरियर। अगर रेडियस से बड़ा है तो एक्सटीरियर, अगर रेडियस से छोटा है तो इंटीरियर। थर्ड पार्ट है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए डैश ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल ये भी लिखा है, डायमीटर होता है। तो थर्ड पार्ट का आंसर होगा डायमीटर। फोर्थ पार्ट का होगा एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। आर्क का डेफिनेशन देख लो, वो आप लिख देंगे। सेमी सर्कल, arcs are equal, an arc is a dash and the ends are the ends of the diameter। ends of the अगर diameter है तो सेमी सर्कल होगा। तो 4 नंबर का है सेमी सर्कल है। इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो आप देखो, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ए। सेगमेंट जो होता है वो किसके बीच का रीजन है, आर्क एंड द chord and either of its arc। chord है, the chord है तो यहाँ पे लिखेंगे the chord
नेक्स्ट पार्ट है इसका, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। एक सर्कल जो होते हैं प्लेन को डिवाइड करते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में। इक्वल पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 10.1 का। इसमें बताना है ट्रू और फॉल्स। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। हाँ भाई ये ट्रू है। ट्रू है। सेकेंड पार्ट, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। लिख सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, ये नहीं हो सकते। तो इसका आप लिखोगे फॉल्स, नहीं होते हैं। तो सेकेंड नंबर का आंसर होगा फॉल्स। थर्ड नंबर है इसका, आप देखो। थर्ड नंबर है इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स। अगर सर्कल के 3 इक्वल आर्क्स हो जाए, ईच इज ए मेजर आर्क, नहीं माइनर होगा। तो थर्ड भी फॉल्स है। माइनर हो सकता है, मेजर नहीं हो सकता। अगर सर्कल के 3 इक्वल पार्ट कर देंगे तो माइनर हो सकता है, मेजर नहीं हो सकता। 4 नंबर, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल है विच इज ट्वाइस है एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर रेडियस का डबल हो गया तो डायमीटर ऑफ द सर्कल ही होगा। तो फोर्थ नंबर जो है वो ट्रू है। अगर रेडियस का डबल हो गया तो डायमीटर ऑफ द सर्कल हो सकता है कॉर्ड। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। नहीं, बिटवीन एन आर्क एंड द 2 रेडियाई है। एंड 2 रेडियाई है, ये कॉर्ड दिया हुआ है। 5 नंबर भी फॉल्स है। एंड 6 नंबर में है सर्कल इज ए प्लेन फिगर, ये ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें केवल 10.1 एक्सरसाइज में केवल 2 क्वेश्चन है, और ये 2 क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है सर्कल का डेफिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट है, आर्क है, लाइन सेगमेंट, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तब आप ये मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये आप कर सकते हैं। इस एंगल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसे पूरा करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है, सबकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। रेडियस के बारे में, आर्क के बारे में, डायमीटर के बारे में, इन सभी के बारे में अगर आपको पता होगा तभी आप इसे कर सकते हैं। यथा मुश्किल होगा फिर आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकें, तो ये जो जितने डेफिनेशन आपको लिखवाए गए हैं, ये सारे डेफिनेशन अच्छी तरह लर्न होना चाहिए, तब जाकर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर मेक अप द सर्कुलर रीजन। सर्कल और उसके इंटीरियर पार्ट जो होते हैं वह सर्कुलर रीजन को बनाते हैं। आगे इसमें और भी है, कुछ आते हैं। अब आपको ड्रॉ कैसे करना होता है, सर्कल है। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए पेंसिल कंपास होना चाहिए।
इसके अलावा रूलर है लाइन ड्रॉ करने के लिए, मेजर करने के लिए। अगर ये सब कुछ आपको पता है तो आराम से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर का है तो उसे 5 सेंटीमीटर के बराबर इतना खोलना है, एक जगह पे रखना है और इस पे रख के कैसे सर्कल बनाना है। तो सर्कल का जो सेंटर है इसका ध्यान रखना। ये जो होता है ये पार्ट है कि यहाँ पे सेंटर होता है, ये जो होता है इसको रेडियस कहते हैं। ये जो सर्कुलर रीजन होता है इसको हम से करते हैं सर्कमफेरेंस। ऐसे अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दी है ये कॉर्ड हो गया और ये जो स्पेस दिख रहा है ये सेगमेंट हो गया स्पेस। सीधी ये जो लाइन है ये जो है इसको हम कहते हैं डायमीटर। अगर ये ऐसे आ जाए सेक्टर, और ये जो ईच पार्ट होते हैं ये सेमी सर्कल होते हैं। छोटे वाला जो पार्ट होता है उसको माइनर सेक्टर, बड़े वाले को मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट बड़े वाले को मेजर सेगमेंट, और केवल जो शॉर्टेज का पी और क्यू वाला जो इतना पार्ट होता है ये आर्क हो गया। माइनर आर्क, मेजर आर्क, सर्कल के अंदर वाले पार्ट को इंटीरियर, सर्कल के बाहर वाले पार्ट को एक्सटीरियर। सर्कल है ये होता है इंटीरियर, बाहर वाला जो होता है उसको कहते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल है। तो ये सभी सर्कल से रिलेटेड है, ये सभी आपको पता होना चाहिए किस पार्ट को क्या करते हैं, किस पार्ट को क्या करते हैं। अगर आपको ये सारे अच्छी तरह लर्न होगा तो आप ये 10.1 एक्सरसाइज प्लस कंसेप्ट ये आपके फेयर कॉपी में होना चाहिए। जितने भी कंसेप्ट है सभी आपके फेयर कॉपी में होना चाहिए, तब आप कर सकते हो। 10.1 एक्सरसाइज भी होना चाहिए और कंसेप्ट जितने भी हैं सभी कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए फेयर कॉपी में, तब जाकर आप 10.1 एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब 10.1 एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट हमारा आएगा 10.2, वो कल करेंगे। बाकी कंसेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, सब कुछ है, फिर आप ये कर सकते हो। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मुश्किल है ये सोल्व करना। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम इसे अच्छी तरह सोल्व करें तो आपको ये सब कुछ लर्न होना चाहिए, फिर आप कर सकते हो।